Have you ever traveled to Nepal? Yeah, I went to Kathmandu. पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गई थी and it was wonderful darshan and I felt so good in Nepal. To become a yogi, you have to follow 8 rules. पतंजलि योग सूत्र के जो अष्टांग 8 limbs of yoga है that you have to follow. Then only you can become a yogi. In our body there are 7 chakras: root chakra, sacral chakra, solar plexus, heart chakra, throat chakra, third eye chakra, center of your forehead and crown chakra. इंसान स्पिरिचुअल पैदा ही होता है. बाय बर्थ दे आर स्पिरिचुअल. अभी बाहर के इतने सारे इमोशंस उसके अंदर आते जाते हैं तो भूल जाता है कि वो एक स्पिरिचुअल इंसान है. फिर एक दिन वो बाहर आता है, लाइफ को देखता है. लाइफ में लोग रिलेशन बनाते हैं एंड देन ब्रेक हो जाते हैं. पानी डाले डाली देखे, इमीडिएट उसको सब चाहिए कि मैंने अभी पानी डाला है तो वो अभी मुझे फ्रूट्स फल मिलना चालू हो जाए. यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि वैधानिक तरिकाबाट पैसा पठाउँ. हुन्डी गर्दै नगरौँ. तपाईँ घरमै बसी बसी बिना कुनै शुल्क तपाईँको आफ्नै मोबाइलबाट नेपाल पैसा पठाउनको लागि ट्याप ट्याप सेन्ड एप्पलको एप स्टोरबाट र गुगलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाईँ चाहिँ नयाँ युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने 50 दिरहम्स एज अ बोनस पाउन सक्नुहुनेछ. सस्तो एयर टिकटको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्. सम्पर्क ग्रीन स्काई ट्राभल एन्ड टुरिज्म. आप कैसे हो? I'm very good. What is the purpose of visiting Dubai this time? So we are doing a 1-day Anant Urja Safar spiritual retreat with my brother Ayush. So we are doing 7 chakra chanting and Reiki healing here on 18th. Ayush and you are same biological brother and sister. Yes. Oh, awesome. Because we had very good conversation with Ayush last time. And of course, as I'm not good in Hindi, I try to speak in Hindi as much as I could. Yeah, I want you to speak in Hindi. Also, okay. But you can talk in Nepali also. Seriously? Yeah. Nepali words, I think it's similar to Hindi and Sanskrit. कुछ words similar है. But जब आप बोलोगे तो I think I will understand. थोड़ा बहुत. Okay, but you cannot speak. I will learn also. Okay, let's try. See, my name is Arvika. मेरो नाम अर्बिका हो. मेरो नाम Arvika हो. Yeah, that's my name is Arvika. And I came from India. म इन्डियाबाट हुँ. म इन्डियाबाट हूँ. मेरो नाम Arvika हो, म इन्डियाबाट हूँ. Okay, correct? Yes, correct. And then what next? Next. What you do? And I'm yoga practitioner. And I am into writing, film writing, script writing, and I'm actor. Last time आयुष से बात करने के टाइम में पॉडकास्ट करने के टाइम में he was telling us that he is inspired by dad. You are also same or I'm what? inspired by Ayush. Okay. Because at the age of 7 he started doing Reiki healing, meditation, and so many things which I was not aware of these things. He is my younger brother. But still, I have seen him to do early morning meditation, Reiki healing for himself also, for the others also. So I thought it's something interesting, and I also have to learn from him. I should learn from him. So he is the inspiration, and then I started my own journey. आपने तो मास्टर्स किया है टेक्नोलॉजी में. Yeah. Right? How did you transform into this spirituality and acting and this writing things? So basically, कोई spirituality कोई field नहीं है. This is not in profession.
बाय बर्थ दे आर स्पिरिचुअल. अभी बाहर के इतने सारे इमोशंस उसके अंदर आते जाते हैं तो वो भूल जाता है कि वो एक स्पिरिचुअल इंसान है. बाहर की एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, एक्सटर्नल जो भी हम देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, सोसाइटी की बातें, सो मेनी थिंग्स. तो जब वो फिल करता है अपने अंदर तो स्पिरिचुअलिटी कहीं खो जाती है. अब जब आप वापस से अपने सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाते हो, स्पिरिचुअलिटी इज़ आध्यात्मिक, हिंदी में बोलते हैं आध्यात्म, मतलब अपने बारे में ही, अपने अंदर की जर्नी, योर इनर जर्नी इज़ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता. तो जब आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हो, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी. अपने स्पिरिट को, अपने सोल को पहचानने की जो जर्नी है, दैट इज़ दिस. तो ये धीरे 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 ही आती है, बट कैसे आती है आपको सोचना पड़ता है. आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये दुनिया क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है. वेस्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे. देयर शुड बी ओनली वन क्वेश्चन, हु एम आई. और जब आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर इनर जर्नी, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी. Nowadays, I have seen like so many people, they think yoga is just the postures of body. Could you explain about this? So हाँ, आजकल सब लोग मैट लेके योगा कर रहे हैं. Exactly. And this is very good thing कि लोग अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं. मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, दे वांट टू डू दैट. और पहले एक क्रेज़ था, लोगों को जिम करना होता था. दे वर वेरी क्रेजी फॉर जिम. And now people are very crazy for yoga asanas. But to do only yoga posture, yoga asanas is not full yoga. To become a yogi, you have to follow 8 rules. पतंजलि योग सूत्र के जो अष्टांग 8 limbs of yoga है, that you have to follow. Then only you can become a yogi. लेकिन अगर आप मैट लेके only योग आसन्स कर रहे हो, that is very good for your physical strength. Okay. But for your mind, your soul and your body, you have to follow 8 steps. Okay. So वो 8 steps जो भी follow करता है, every day, that person become yogi. What are those 80 steps? So जो 8 steps हैं, that is first is यम, यानी एथिकल डिसिप्लिन. आपको सोसाइटी में कैसे डिसिप्लिन रहना है. सोसाइटी में यानी कि हम जिस भी वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन दुबई और इंडिया और नेपाल, वहाँ की सोसाइटी की डिमांड क्या है. बेसिक जो डिमांड होती है वो है नॉन वायलेंस, राइट. अगर आप अहिंसा जिसको बोलते हैं, अगर आप अहिंसा को, नॉन वायलेंस को फॉलो करते हो, तो आपका सराउंडिंग एकदम क्लियर रहेगा. नो लड़ाई झगड़ा, नथिंग. देन आपको फॉलो करना है, यू हैव टू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, बट नॉट नॉर्मल ट्रूथ. यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट योर ओन ट्रूथ. बिकॉज मेरा सच कुछ और हो सकता है, आपका सच कुछ और हो सकता है, थर्ड पर्सन का सच कुछ और हो सकता है, बट यू हैव टू नो दैट वॉट इज़ योर ट्रूथ, राइट. देन लालच नहीं करना, किसी और की चीज़ को अपनी चीज़ नहीं समझना. यू आर गेटिंग कि यार ये फॉर एग्जांपल ये टीवी काश ये मेरा होता, बट ये मेरा नहीं है, ये मुझे पता है और ये अवेयरनेस होनी चाहिए, मैं उसको चोरी नहीं कर सकती हूँ. तो इस तरीके से हमारे जो एथिकल डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना, ठीक है. देन आता है सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन में क्या आता है, आपको रेगुलर डेली जल्दी उठना है, अपनी बॉडी को क्लीन करना है, बुक्स पढ़नी है, अच्छा नॉलेज गेन करना है, जो भी हमारा डेली रूटीन है उसको प्रॉपर वे में फॉलो करना है. तो हम अपना, अभी हमने फर्स्ट जो एथिकल डिसिप्लिन से हमने अपना सोसाइटी क्लियर किया, नॉन वायलेंस, झूठ नहीं बोलना, ट्रूथफुल रहना, दूसरों की चीज़ें ना चुराना, दैट इज़ फर्स्ट वन. एंड देन सेकेंड वन इज़ सेल्फ डिसिप्लिन. जल्दी उठना, टाइम पे खाना खाना, अपने बॉडी को क्लीन रखना, हाइजीन मेंटेन करके रखना, नॉलेज गेन करना,
ठीक है, भगवान को या जिसको भी आप जिस भी एनर्जी को आप मानते हो उसके लिए सरेंडर रहना. एंड द थर्ड इज आसन, दैट इज योगासन. तो जब हम योगासन को फॉलो करते हैं, योगा पोस्चर्स करते हैं, तो उससे हमारा बॉडी का स्ट्रेंथ बिल्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड होती है, मसल्स गेन होते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रांग होता है. दैट इज़ थर्ड पार्ट जो हम मैट लेके करते हैं. ठीक है. एंड देन फोर्थ वन इज़ प्राणायाम. तो प्राणायाम में क्या होता है कि हम अपने ब्रेथ कंट्रोल करते हैं. प्राणायाम मीन्स हम प्राणों की वजह से तो हम अलाइव हैं. अगर हमारी बॉडी से ऑक्सीजन निकाल दी जाए तो हम डेड हो जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं है. तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर हम राइट वे में राइट वे में अगर हम सांस लेते हैं, राइट वे में लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम यानी कि कपाल भाती कर लिया, भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, इस तरीके से हम अपने ब्रेथ को प्रॉपर वे में जब हम लेते हैं तो वो होता है प्राणायाम. अपनी हम एज बढ़ा सकते हैं प्राणायाम के थ्रू. तो दिस इज़ फोर्थ वन. इससे हमारा माइंड क्लियर होता है, हमारा इनर क्या बोलेंगे, इंटरनल जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो क्लियर होते हैं. दैट इज़ फोर्थ वन इज़ प्राणायाम. एंड देन प्रत्याहार, विड्रॉ करना है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से. तो जो 5 सेंसेस हैं, आइज़, नोज़, माउथ, ईयर, हमारा स्किन, तो हमारी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल चीज़ें इन्हीं 5 गेट से आती है ना. एग्जैक्टली. क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं, और वो करने के बाद हमें क्या फील हो रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट, नेगेटिव और पॉजिटिव. तो फॉर एग्जांपल हम लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों से ज़्यादा हम नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं. तो हमें उन सब से विड्रॉ करना है. 5 सेंसेस को अंदर की तरफ फोकस करना है, इंटरनली नॉट एक्सटर्नल. एक्सटर्नल डोर क्लोज करने हैं. दैट इज़ 5th पार्ट. ओके. एंड देन 6th वन इज़ धारणा. धारणा मीन्स जो भी हमने 5 गेट्स को इंटरनल अंदर की तरफ फोल्ड किया है उस पर फोकस करना है. धारणा मीन्स धारण करना, उस पर फोकस करना है. एंड देन 7th इज़ ध्यान यानी मेडिटेशन. दैट इज़ 7th पार्ट. तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान का मतलब क्या होता है, फोकस. हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना ये चीज़, ध्यान से करो, ध्यान से खाओ, ध्यान से चलो, ध्यान से रास्ता क्रॉस करो. ध्यान मीन्स फोकस. हम पूरा दिन अगर फोकस रहेंगे, होश में रहेंगे, फोकस्ड होके काम करेंगे, जैसे मैं भी पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस पॉडकास्ट में होना चाहिए. यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू और पॉडकास्ट 100% फोकस्ड इन दिस ओनली. तो वो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब आपने फर्स्ट सोसाइटी की चीज़ें क्लियर कर ली, सेकंड सेल्फ डिसिप्लिन में आ गए, थर्ड अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लिया आसन से, फोर्थ प्राणायाम से अपने ब्रेथ पे वर्क कर लिया, फिफ्थ एक्सटर्नल जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको कंट्रोल किया, एंड देन 6 धारणा, उनको अंदर की तरफ फोकस करना स्टार्ट किया, एंड देन 7th वन इज़ मेडिटेशन. तो आप उस पर फोकस कर रहे हो, स्टिक हो गए हो आप, फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आपको क्या लगता है फिर एक्सटर्नल थॉट्स आएंगे ड्यूरिंग द मेडिटेशन? नहीं आएंगे, फिनिश हो गया सब, क्योंकि आपने सब क्लियर कर लिया. एंड देन 8th वन इज़ समाधि. तो जब आप 7 स्टेप्स को पार कर लेते हो, देन बहुत ही रेयरली होता है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो आप इन सारे स्टेप्स की, देन वन डे you will feel that divine energy, or you will feel the divine connection with God or supreme power or cosmic energy. That is samadhi. And beyond that there is nothing. So if you follow these 8 rules, then you can become a yogi. So for me, like, I don't know anything about these things. Yeah. So if I start yoga, how long it will take for me to be a yogi? Maybe whole life, or maybe in few seconds. How much time Gautam Buddha took?
how much time महावीर took. कितना टाइम लगा उनको गौतम बुद्धा बनने में या महावीर को महावीर बनने में. We cannot say. It's just start your journey and go with the flow, and one day you will find it. I just had a curiosity about this one. So how long it gonna take for me? It's up to you. But when you will start, how you practice, it's up to you only. Nobody can help in that. Because ये अंदर inner journey है, it's not external journey. मैंने बहुत देखा है actors, they are doing yoga. Yeah. So how these things affect in their careers? See, if you are doing yoga, your body, mind and soul सब अलाइन हो जाता है. ठीक है. एंड एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग में जब हम कोई कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यू हैव टू बी प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, राइट? लाइक आई एम आर्विका, बट अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल किसी दीपिका नाम की लड़की का कैरेक्टर प्ले करना है तो मैं उस वक्त आर्विका नहीं रहूँगी. आई हैव टू बिकम दीपिका. सो उस प्रेजेंट मोमेंट में मुझे रहना पड़ेगा. और वो माइंडफुलनेस आती है मेडिटेशन और योग से. दिस इज़ द बेस्ट वे टू बी एट प्रेजेंट मोमेंट. एक्टिंग में आप अपने किसी पुराने थॉट के बारे में सोच रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो, देन यू आर नॉट एन एक्टर, राइट? सो इफ़ यू आर डूइंग योग एंड मेडिटेशन, इट विल मेक यू बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी डे. अब हम दूसरा टॉपिक में बात करेंगे, वो है अनंत ऊर्जा सफर. व्हाट इज एग्जैक्टली दिस इज? See, Anant Urja Safar, Anant means infinite, Urja means energy and Safar is journey. So, Anant Urja Safar, infinite energy ki journey. So, in this, we started this organization जहाँ हम लोगों को infinite energy की journey में लेके जाए साथ में. Means spirituality की journey में एक first step रखने में उनका help करें. तो in this journey we do meditation, pranayam, reiki healing therapy, yoga asanas and क्या होता है 5-7 डेज़ का जो जर्नी होता है उसमें आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है. अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना एंड देन फॉलो योर रूटीन एवरी डे. सो इट क्रिएट्स अ हैबिट ऑल्सो. व्हेन यू गो बैक टू योर होम, इफ़ यू फॉलो दैट जर्नी, then slowly it will change your life. What is the reaction from the people here in Dubai for this journey? They are very excited because last time also we did the same thing here, and people are very crazy also. For spirituality, people are very crazy nowadays. They want to clean themselves. Mindfulness is very important in life. So they just want to clean their blockages. They want to do meditation. They want to learn meditation. They want to heal themselves. So that's why they are very keen to do these things. And they cry also. While we do that, they cry also. Because बहुत सारे blockages होते हैं दिमाग में, mind में. So slowly वो break होता है and then they cry. And then they feel very light after that. So in that moment, how you guys feel? We feel blissful ki, okay, it's happening. If they are getting benefit from us, that's a very, heart-touching feeling ki, okay, what we are doing is good for the people. How many countries you have traveled for this purpose? For Anant Urja Safar? Yeah. We started with Dubai. We did Anant Urja Safar in Nepal also. And Singapore, Kenya. And Singapore, Kenya, yeah. Any different experiences in different countries like Dubai and Singapore and some other countries when you are in this journey? So, when we were in Rishikesh in October, we were doing Anant Urja Safar in Rishikesh. So that time, 2-3 girls, they were crying continuously. They were crying and they fainted also. And when they got up, they just hugged us
and say thanks a lot. So these kind of feeling mesmerized us ki, oh. And after that they are just connected with us, they talk with us कि ठीक है, next time we again want to join you. हमारा मिशन है, हमारा विजन है कि 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, लाइक हम उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाना स्टार्ट कर देते हैं. वी टीच देम ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो. बट वी वांट टू टीच देम हाउ टू मेडिटेट. वी शुड स्टार्ट फ्रॉम होम एंड देन स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. सो अगर एवरीवन विल डू मेडिटेशन, they will be more aware in their own life and it will be good for that country also. आज नहीं, after few years, but it will reflect. क्योंकि आज का youth, they are mostly busy on their phone. They don't know what to do. They are clueless क्या करना है, क्या नहीं करना है, right? But जब एक छोटा बच्चा, उसको पता भी नहीं है what is meditation, what is योग, what is, ध्यान. We have to practice them. कि just close your eyes and sit for some time. That practice makes perfect, right? तो हमारा विजन है कि हम घर घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, स्कूल्स में जो बच्चे हैं, वहाँ पे मेडिटेशन इम्प्लीमेंट होना चाहिए. That is our vision. It will be good for the country also. There is 7 chakra also. What is this and how does it help us in our life? So in our body there are 7 chakras. 7 chakras में one is root chakra, sacral chakra, solar plexus, heart chakra, throat chakra, third eye chakra, center of your forehead, and crown chakra. It is Sahasrara chakra. So root chakra is a red color का होता है. Root chakra is red color का होता है. Sacral chakra जो होता है that is orange color. And third one is Manipur chakra, यानी solar plexus, that is yellow color. Heart chakra is green color. And throat chakra, it's blue color. Third eye chakra is violet color. And this one is cosmic, only light. So basically जो root chakra होता है, that is for our stability in life. To make you stable, rooted. That is root chakra. If you chant for root chakra, it will give you stability in the life. It will give you the cause to be rooted with your situation or with your life. So that mantra is Lam. If you chant Lam, like Lam, and imagine the red color chakra, because the element of root chakra is earth. Earth is for stability. It gives you the stability. So if you chant Lam, it will stable your life. When your life is stable. So and if we talk about the god who is there in root chakra is Ganpati. We started our podcast with Ganpati Bappa Moria. Exactly. So Lord Ganpati, Bhagwan Ganpati is there to start your life. Just to start your, because the main energy point is root chakra. So Ganpati ji वहाँ पे रहते हैं. And Ganpati gives you stability. So every day 3 minutes you have to chant Lam. And then again, if we talk about sacral chakra, that is Swadhisthana chakra, just below your navel. Okay? And the mantra is Vam. And the god, Lord Brahma is there. Lord Brahma is a creator of the world, Brahmand, universe. So Lord Brahma, he is a creator. And this chakra is connected with the creativity. अगर आप किसी भी फील्ड में हो, यू आर वेब डेवलपर, कोई आर्टिस्ट है, कोई पुलिस में है, कोई पॉलिटिशियन है, एनी फील्ड, एवरीवेयर वी नीड क्रिएटिविटी in your job or in your life. So Lord Brahma gives this. And this is for the confidence.
अगर if you are confident about your creativity, your art, your craft, then you will be successful. So for that, you have to chant VAM every day, 3 minutes minimum. VAM, Okay. like this. And next one is Manipur Chakra, यानी solar plexus. यहाँ पे लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु जी होते हैं. भगवान विष्णु, ही इज़ अ ऑपरेटर. भगवान ब्रह्मा ने यूनिवर्स बनाया, भगवान विष्णु उसको ऑपरेट कर रहे हैं. ऑपरेशन मीन्स कर्म. यू हर्ड अबाउट लॉ ऑफ कर्मा. वॉट एवर यू विल डू, यू विल गेट बैक, राइट. तो हमें क्या कर्म करने हैं, वॉट एक्शंस वी आर डूइंग, हमें वही मिलता है. हमने अगर पास्ट में अच्छा किया है या बुरा किया है, यू विल गेट इन प्रेजेंट, राइट, और मे बी इन फ्यूचर. सो जस्ट टू बी अवेयर वॉट यू आर डूइंग इज थर्ड वन, मणिपुर चक्रा. और हमें क्या कर्म करना है, उसके पीछे का इंटेंशन क्लियर होना चाहिए. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड विद बैड इंटेंशन, देन इट विल नॉट वर्क. It will give you bad result only. So intention should be positive. And to know it, you have to chant Manipur के लिए Ram. Ram, and focus on your Manipur chakra, third chakra. And then fourth one is heart chakra, center of your heart, center of your chest. Bhagwan Shiv is there. एंड भगवान शिव, यहाँ पे भगवान शिव क्यों हैं? दिस इज़ फॉर योर एंगर, योर जेलसी, वॉट एवर दीज इमोशंस यू आर कैरिंग इन योर हार्ट फॉर अदर्स और फॉर योर सेल्फ. है ना, किसी ने कुछ बोल दिया था, यू आर स्टिल थिंकिंग दैट, यू वॉन्ट टू टेक रिवेंज, और हार्ट ब्रेक हुआ है, एनीथिंग. So you have to get out of that situation or out of that emotion, and just to be, proper connection with that person or with anything without any attachment, but there should be a proper relation. To make the proper relation without any jealousy, without any anger, without any other kind of emotion. So if you chant for heart chakra, that is Hriday. This is called Hriday. So the chanting mantra is Yam. Because if you know about Shiv शमशान में रहते हैं, ठीक है. जब हम शमशान में जाते हैं, मरने के बाद जाते हैं, राइट. मरने के बाद हमारे पास कोई इमोशन नहीं होता है, जस्ट अ डेड बॉडी, इमोशनलेस. देन ओनली यू कैन मीट भगवान शिव. Okay. You can mix with Bhagwan Shiv. So same way, if you want to activate your heart chakra, so heart chakra में कौन है? शिव है. To meet Shiv, you have to get out of these emotions. You're getting? Yeah. And then you will meet with Shiv. So you have to chant Yam 3 minutes every day. Alright. And then next one is throat chakra. मतलब हृदय चक्र, अनाहता चक्र इज फॉर रिलेशनशिप्स. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र. एंड थ्रोट चक्र में होती है देवी शक्ति, भगवान शिव की वाइफ. शी इज़ देयर. एंड क्या होता है कि जब हम कुछ भी बोलते हैं, वॉट एवर वी आर टॉकिंग विद एनी वन, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, हमारे वर्ड्स में पावर ही नहीं है. ही इज़ नॉट लीस्ट बॉदर टू लिसन यू. Okay. Right? If we start doing humming, then it will activate your throat chakra. जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनकी आवाज़ में लोगों को सुनने का मन करता है, यार क्या बोल रहा है, उनकी बात को मानने का मन करता है. अगर आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड है, then people would love to hear your voice. They will love to talk with you. They will understand you and they will agree on your whatever you are saying. It's a power of throat chakra.
So to activate it, you have to start humming. Right? कुछ लोग कुछ स्लोगन्स बोल देते हैं, राइट? कुछ कोटेशंस ऐसे बोल देते हैं, हम हमेशा याद रखते हैं जस्ट बिकॉज उनका थ्रोट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका कम्युनिकेशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी ने कुछ लाइन भी बोली हो तो वो मंत्र होते हैं ना, मंत्र की तरह इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो इट्स अ पावर ऑफ दैट चक्र. So I have to follow this one. You have to follow this one. Yeah, You have to follow all. exactly. It will give you stability also, confidence also, creativity also, Yeah. relationship stability also, communication. And then next one is third eye chakra. Third eye chakra mein you have to chant Om and focus on your third eye. Third eye is half Shiv, half Shakti. अर्धनारीश्वर बोलते हैं, half Shiv, half Shakti. So you have to chant Om. It gives you intuitional power. Intuition आपका strong हो जाएगा. लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, it will help you. Intuition strong हो जाता है तो हमें पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, right? Then it will give you that power. What is intuition power? Intuition मतलब कि हम हमारी लाइफ में कितने सारे ऐसे सिचुएशंस होती है जब हम समझ नहीं पाते हैं कि यार क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए. कन्फ्यूजन होता है मोस्टली लाइफ में, हम कंफ्यूज रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा लाइफ से. इट विल गिव यू क्लैरिटी. क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप हर चीज़ में क्लियर हो, येस और नो, हॉट और कोल्ड, नो वार्म. Okay. So you have to be very clear about it. So this will help. And then last one is crown chakra. Crown is just if your all chakras are active and balanced, then you can connect with the supreme power. It's just cosmic power, cosmic energy there. And after that you will need, after this there's nothing. Just a connection between you and that supreme power. So this 7 chakra chanting, like I told you, every chakra has their own mantra. So we do that in our session. That is 7 chakra chanting. You write something, right? Yeah, Movie I write. industry Yeah, also. I write script writing. Yeah. So can you explain a bit more about this one? Script writing, हम जो बॉलीवुड में फिल्म्स देखते हैं और तेलुगु इंडस्ट्री में जो फिल्म्स देखते हैं, आई एम वर्किंग ऑन दैट scripts now. Okay. From last 2-3 years, I started writing for the films, and it's very interesting to write different character, their journey, their emotions. So I learn a lot from that also. And meditation helped me a lot to write stories. Because हम जब meditation करते हैं तो बहुत सारे thoughts आते हैं. जो thought useless होते हैं वो भी आते हैं. Okay. Right? Yeah. And those useless thoughts, when I collect it, then I can use those thoughts in my story. So it becomes some useless thoughts to useful thoughts. How do you combine this wellness and acting together in your life? Wellness तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, एनीथिंग. Wellness is the first priority. Health should be the first priority. So to be अगर मैं मेरी बात करूं, एक्टर के लिए to look beautiful, to look healthy, to look fit, it's very important. So it's connected. Health, beauty, acting, it's connected. And it's just not that I'm doing this for acting. This is my daily routine also. I love to follow my early morning, whatever I'm following. Jaldi utna, yoga karna, time pe breakfast, lunch, dinner karna. It's just routine, fixed. And this is not for the acting field. This is for my own self.
Could you share some experience of acting? Acting experience, it's a mind-blowing experience. To be an actor, I mean, you have to be versatile. You have to live different personality, different mindset. So एक एक्टर अगर आप बनते हो तो आपके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स होने चाहिए, अलग अलग इमोशंस होने चाहिए, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर and all 9 emotions. If you can carry that emotion at present moment, then you are an actor. Exactly. And I'm very grateful that I'm into this industry. I started my journey as an actor. Basically, I'm an engineer, but I started my journey as an actor. I did so many TV shows, web series, and now I'm doing Telugu films also. So it's a great opportunity that I'm working with lots of good, directors, producers. So I'm very grateful to be an actor. What challenges you see in the Indian movie industry? See, challenge हर इंडस्ट्री में होता है. Like if you talk about regional language also, सबको खुद को प्रूव करना है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे कैन एंटरटेन पब्लिक. मेन इंटेंशन इज टू एंटरटेन पब्लिक एंड मेक द गुड कलेक्शन. बट बॉलीवुड में क्या हो रहा है, बॉलीवुड में दे डोंट हैव देयर ओन स्क्रिप्ट्स. दे आर सर्चिंग, they are looking for Telugu, Tamil, other regional language का script. They want to remake it. Yeah, हमने बहुत देखा है remake वाला movie. हाँ, तो they want to remake it. They don't want their own original. So this is the main drawback. And the second thing is they don't want to take risk. They just want to copy paste. So this is the challenge, but they have to improve themselves क्योंकि अभी तेलुगु फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, साउथ इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, तो they should learn from them, I think. Yeah. घटी चलम. घटे का चलम. घटी का चलम. Yeah. How was your experience with this movie? It was great experience because first time I did Telugu language ka film and it was challenging for me because I have to deliver my dialogues in Telugu language only. And it was like I'm giving my board exams. How hard it is? It was not hard, but when I learned it became easy. But initially when I was reading that script, it was very challenging to just pronounce it properly. Exactly. And then remember that word. Not only word, remember the sentence. And not only sentence, remember the whole paragraph during the delivery of that, dialogue. So it was challenging, but they helped me a lot. They taught me a lot. That team. Yeah. What kind of movie is this? What is the story? It's a suspense, horror, thriller kind of film. Okay. So that guy, he's facing schizophrenia. And then I'm psychiatrist. I'm treating him. Sorry. Okay. And at the end, I need to face. At the end, I have to face all the challenges, and उसको ठीक करना पड़ता है end में. So when we can expect this movie on theater? Maybe next year. Till then, you can enjoy the teaser. So in your experience, how the movie is? I mean, it is good or like No, it's good movie, not okay. It's not very big movie, but it's interesting concept. You will enjoy. Awesome. We will watch this movie. Definitely watch it. Yeah. What are the things you are doing except these all? Multiple things. Like what? Yeah. I love traveling also. I like writing. As I told you, I'm into script writing, but kabhi-kabhi I write poetries. Do you have any poem that you can? You want to listen, but it's in Hindi, okay? That's fine. The title is Coke se Khaak Tak.
ओके. दो बूंद मिले एक दाना बन, फूटा अंकुर एक गागर में, सिमटे अकड़े जकड़े मचले, तैरे जैसे एक सागर में. दो नयन मगर अंधियारे में, ध्यान लगा 9 सदियों सा, गोते खाती सांसें चलती, बहता मटके में नदिया सा. हटी परत निकली शाखा, बेचैन हुआ हंसता रोता, है डोर थमी पर हाथों में, रैन जगे दिन में सोता. एक रोज पंख सा एक धागा, वो देख मगन उड़ यूं भागा, हर डोर तोड़कर नातों की, एक कड़ी नींद से वो जागा. तिनका तिनका जरा जरा, जीता रहता वो मरा मरा, पानी डाले डाली देखे, पल पल है उसका डरा डरा. दिन शाम रात सब देख लिया, ये पेड़ हुआ कुछ बूढ़ा सा, फल बेल लता सब झूल रही, पड़ा हुआ एक कूढ़ा सा. एक जंगल से जीवन की, जर्रे से औकात तक, ये सफ़र है हर एक जीवन का, कोक से खाक तक. Awesome. Can you just explain this कोक से खाक तक? What exactly this? एक्चुअली कोक से खाक तक मतलब एक बच्चा जो होता है माँ के पेट में होता है for 9 months, एंड देन उसका एंड क्या होता है, एक दिन वो राख बन जाता है, ऐश बन जाता है, जलने के बाद मर जाता है वो. तो वो जर्नी आई वाज ट्राइंग टू राइट कि वो 9 months तक एक मेडिटेटिव कंडीशन में रहता है पेट के अंदर, आंखें बंद करके अंधेरे में रहता है. एंड अंदर एक जो पानी भरा हुआ है ना माँ के पेट में, तो वहीं पे तैर रहा है, वहीं पे सरवाइव कर रहा है. फिर एक दिन वो बाहर आता है, लाइफ को देखता है. लाइफ में लोग रिलेशन बनाते हैं एंड देन ब्रेक हो जाते हैं, है ना. वो अपनी लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोचता है. आज उसमें लाइन है, पानी डाले डाली देखे. इमीडिएट उसको सब चाहिए कि मैंने अभी पानी डाला है तो वो अभी मुझे फ्रूट्स फल मिलना चालू हो जाए. तो वो हर मोमेंट पे डरा डरा सा रहता है, हर मोमेंट में कुछ चाहिए उसको. एंड देन सडनली एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है. एंड देन उसके और बच्चे, ग्रैंडसन जो भी हैं वो आते हैं, और ही बिकेम लाइक गार्बेज समथिंग, है ना. तो वो लाइफ गार्बेज, पेड़ बूढ़ा हो गया है अभी, एंड देन सडनली एक दिन वो मर जाता है. तो उसका जर्नी है बच्चे से लेके, यंग एज से लेके, बुढ़ापे से लेके, एंड देन सडनली डाइड. तो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इन दिस. कोक से खाक तक. या आपने बोला था आप ट्रैवलिंग भी करते हैं. या आई लव दैट. आई लव सोलो ट्रैवलिंग. ओके. व्हाट प्लेसेस यू हैव ट्रैवल्ड? बहुत कम किया है, बट बहुत करना चाहती हूँ. हर जगह जाना चाहती हूँ. In your experience, what is the difference between group and this solo travel? What is the things you cannot do in solo or group or like vice versa? सोलो ट्रैवलिंग में क्या होता है कि आप अपने साथ होते हो, आप खुद को पहचान रहे होते हो. दूसरों के साथ होते हो तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश में होते हो. वो बोलेगा यार चलो खाना खाते हैं, ठीक है यार चलो खाना खाते हैं. मतलब हम उनके जैसा करने की कोशिश में रहते हैं. बट जब हम सोलो होते हैं तो हमें अपने बारे में चीज़ें पता होती हैं, हम अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. कहने के लिए तो हम ट्रैवल करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम नेपाल पहुंच गए, ठीक है, वी आर एक्सप्लोरिंग नेपाल, बट एट द सेम टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग आवर ओन सेल्फ ऑल्सो. कि अपनी अंदर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उसको चैलेंज कर रहे होते हैं. अकेले साथ में नहीं कर सकते. हम स्ट्रेंजर्स से मिल रहे होते हैं. हम आधे से ज़्यादा तभी हील हो जाते हैं जब हम किसी नए इंसान से बात कर रहे होते हैं. सेम इंसान जो आपको जानता है उसके सामने आप उतने फ्री नहीं हो जितने आप किसी स्ट्रेंजर के साथ फ्री होते हो. फ्रीली यू कैन टॉक, फ्रीली वॉट एवर इज़ योर बिहेवियर, योर रियल बिहेवियर, यू कैन बी विद दैट, वी कैन बी ओरिजिनल. बट जिनको हम जानते हैं उनके साथ हम नहीं हो पाते हैं. मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक मिक्स रहता है. सो सोलो ट्रैवलिंग में लोकेशन के साथ साथ हम खुद को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. और जैसे कि मुझे स्पिरिचुअलिटी और इनर जर्नी में ज़्यादा बिलीव है, दैट्स व्हाई आई लाइक सोलो ट्रैवलिंग.
But there is some good things also in group traveling. फन करो, Yeah. मजे करो, ग्रुप ट्रैवलिंग में गाने गाओ. यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स इन ग्रुप. बट अकेले में आप अपनी कंपनी इंजॉय करो, अपने बारे में जानो. यू नो, बहुत डिफरेंस है दोनों में. आप अकेले इंजॉय करके देखो, इट्स टफ. बट इफ यू आर एबल टू डू दैट, यू आर द विनर. Have you got any emergency challenges while you are traveling alone? इमरजेंसी चैलेंज, ऐसा इमरजेंसी चैलेंज तो नहीं आया है, बट अगर आया भी हुआ होगा, किसी के साथ भी अगर आता है, तो हम उसको जब खुद सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है. But there must be some challenges which you cannot solve alone, right? अभी तक तो आया नहीं. आई टोल्ड यू, ज़्यादा ट्रेजेडी हुई नहीं है. So आपके लाइफ में ट्रेजेडी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? नहीं. Awesome. होना भी नहीं चाहिए. और जो ट्रेजेडी होती भी है तो वो ना टेम्पररी होती है. आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए फील करोगे यार ये क्या हो गया, बट थोड़ी देर के बाद सब सही हो जाता है. What about love life in your life? मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं. बहुत प्यार मिलता है मुझे लोगों का. दैट इज द लव लाइफ ओनली. What about someone special? समवन स्पेशल, अभी फिलहाल तो मैं ही स्पेशल हूँ अपने लिए. एंड देखते हैं कोई आता है तो वेलकम. अभी तक नहीं आया? अभी तक शायद वो मुझे ढूंढ रहा है. So you are not in love? आई एम इन लव. अभी आजकल मुझे थोड़ा कान्हा कृष्ण जी से प्यार हुआ है. अभी रिसेंटली हुआ है डीप लव विद कृष्णा. What is this? कृष्णा, भगवान कृष्णा. No, how do you explain these ones? How are you love with Krishna? मुझे दिन भर उनका नाम लेने का मन करता है. उनके मंत्र सुनने का मन करता है, चैंट करने का मन करता है, उनकी पूजा करने का मन करता है. दैट इज लव. I just wanted to make a उनको masala. देखने का मन करता है. प्यार में क्या होता है, हमें उसके साथ बैठने का मन करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है, उनके साथ व्हाटएवर घूमना फिरना जो भी है. तो अभी आजकल मेरा भगवान कृष्ण के साथ मन करता है कि उनके साथ बैठ के मैं उनकी बांसुरी सुन रही हूँ, फ्लूट प्ले कर रहे हैं वो, उनके साथ वृंदावन में घूम रही हूँ मैं. So in your life, what is love then? What is love? Yeah. Love is care and respect. Okay. That's all? I think. Have you ever traveled to Nepal? Yeah, I went to Kathmandu. How was the experience? पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गई थी. And it was wonderful, wonderful darshan. And I felt so good in Nepal. It was just like I'm in India only. It was so deep. Yeah. है ना. एंड वहाँ के जो लोग हैं, आई थिंक दे आर वेरी इमोशनल ऑल्सो. दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. दे जस्ट वॉन्ट टू सर्व यू. Exactly. है ना. सो देयर नेचर इज वेरी गुड. माई एक्सपीरियंस वॉज फैंटास्टिक. How many days it was? I was there 4 days. Yeah. So have you got any special experience in those 4 days? So I was taking yoga class there. I forgot the area name. Okay. कुछ famous area है वो. Inside the Kathmandu or outside? काठमांडू, inside the काठमांडू. कुछ तो Okay. famous नाम है, मैं भूल गई. Okay. तो मैं वहाँ पे योगा सेशंस ले रही थी. And my purpose was to visit temple. Pashupati. Yeah. So that was amazing. All right. So is there any And I future would plan? love to visit again Nepal. और मैं वहाँ पे भी अनंत ऊर्जा सफ़र फिर से करना चाहती हूँ. There's a place called Pokhara. Yeah. I want to go that place and plan there something. Awesome. Good luck for that. Thank you so much. And hope to see you in Nepal soon. Yeah, please, you also join. Yeah, hopefully. All right. Thank you so much. It was nice pleasure to talking to you. Same here. Thank you so much to call me here for this lovely podcast. And I think this is your first activities in Dubai in this trip. Yeah, first.
Thank you so much. Thank you so much. And we have something for you. So, as you are lady, Oh. here is something to make you more beautiful. This is from Care My Skin. They have this Nesa Beauty Clinic and Uzuba products. Okay. From them, this is for you. And for our audience also, if you are interested to these products, you can buy online or you can WhatsApp also. This is for you from them. Thank you, Uzuba. Actually, this is from Care My Skin. Okay. Can I move it? You can keep that side. Yeah. Thank you so much for this lovely hamper. Thank you. Thank you so much. And here is another one Oh, wow. from Nirjan General Trading. Okay. This is a Nepali shop. Oh, thank you so So much. if you prefer any Nepalese clothings or some Nepali products, you can visit this store. This is for you. Thank you once again. Thank you so much. NGT, Nirjan General Trading. Nirjan General Trading. Alright. Thank you so much. And we have some snacks for you from Family Harvest. You can try this one, and if you like, you can order from grocery also. All right, these are all for you. Thank you. I'm feeling hungry already, so we will go for lunch Yes, in yes. the Gorkha Palace restaurant, which is in Alkhel Gate, and we will have Nepali food. Yes, I'm waiting to have Nepali food. So, Awesome. Thank you so much. thank you. Thank you. यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने जहिले पनि वैधानिक तरिकाबाट पैसा पठाउँ, हुन्डी गर्दै नगरौँ। तपाईँ घरमै बसी बसी बिना कुनै शुल्क तपाईँको आफ्नै मोबाइलबाट नेपाल पैसा पठाउनको लागि ट्याप ट्याप सेन्ड एप्पलको एप स्टोरबाट र गुगलको प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ चाहिँ नयाँ युजर हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने 50 दिरहम्स एज अ बोनस पाउन सक्नुहुनेछ। सस्तो एयर टिकटको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क ग्रीन स्काई ट्राभल एन्ड टुरिज्म।